Today we'll be discussing something about consent. ठीक है? So as you all know, once you become a doctor, then you will be seeing your patient, maybe in the clinic, OPD, or if you are a surgeon, you might be operating, or you might be doing some procedure on the patient, maybe invasive or non-invasive. So even before doing a diagnostic procedure, CT MRI भी करा रहे हैं, तो आपने देखा होगा if anybody has faced the situation that they take a consent form, they make you sign a consent form, okay? So without, what is consent? Can anybody tell me? Yeah, approval or permission, because every human being, if you have to do any investigation, any procedure on that person, you have to take a permission from that person. ठीक है? So next the question comes, what type of permission, how to take permission, so what is the correct method? As we all know, these days medical legal issues are becoming bigger and bigger day by day. ठीक है ना? When we were students, we were not that much worried about any medical legal issues. As soon as the Consumer Protection Act came into force, we doctors were also included in that. Since then, lot of problems we are facing day by day. That is why in these days it is all the more important that you know what is the consent, when to take the consent, how to take the consent, so that if due to any reason you have to face any court of law, then you are safe. If you have taken proper consent, nobody can blame you of any false allegations. झूठे इल्जाम भी लगते हैं ना डॉक्टर्स पे पैसे कमाने के लिए, एडवोकेट्स बता देते हैं भाई तू ये इल्जाम लगा दे इतना पैसा दिलवा दूंगा. So we are victim many times without any fault of ours. So how to take a consent? So whenever we talk of a consent, informed consent, the word informed consent is must. Informed का मतलब क्या है कि पेशेंट को उसकी अपनी लैंग्वेज में समझा दिया गया है. ठीक है? सपोज आई हैव गिवन अ फॉर्म, इंग्लिश में कोई फॉर्म है एंड आई आस्क द पेशेंट और द अटेंडेंट टू साइन दैट फॉर्म. लेटर ऑन इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एंड द पेशेंट गोज इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, डॉक्टर साहब ने कहा साइन कर दो, मैंने तो कर दिया, मैं तो इंग्लिश जानता भी नहीं हूँ. सो इट शुड बी इन्फॉर्म्ड कंसेंट. आपको उसकी लैंग्वेज में समझाना है. हिंदी समझता है हिंदी में, मारवाड़ी समझता है मारवाड़ी में, मराठी समझता है मराठी में, उसकी लैंग्वेज में समझाना है कि आप व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सपोज कोई सर्जिकल प्रोसीजर है तो आपको क्या सर्जरी करनी है. फॉर एग्जाम्पल एक लैप अपेंडिसेक्टमी कराना है, किसी का करना है आपको, तो आप क्या कंसेंट लोगे कि अपेंडिसेक्टमी करनी है, लेप्रोस्कोपिक रूट से करनी है, और प्लस व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स. तो व्हाट कैन हैपन, स्पेशली अगर पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी है, सपोज हार्ट पेशेंट है, तो देयर आर चांसेस ऑफ गोइंग इनटू एमआई. तो वो भी आपको समझाना है कि इसका ये प्रोसीजर होना है, इस रूट से होना है, और ऑल दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस, एंड ये सब कुछ हमें अच्छे से समझा दिया गया है. ठीक है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द रिस्क. बेनिफिट्स तो सभी बता देंगे, बट रिस्क बताना सबसे ज्यादा जरूरी है. देन दैट कंसेंट इज वैलिड. देन क्वेश्चन कम, किसकी कंसेंट ले सकते हो आप? तो किसकी ले सकते हैं, कोई बताएगा? हु कैन गिव कंसेंट? Anybody above 18 years of age can give consent. जो भी adult, any adult can give consent. और suppose बच्चा है, तो suppose 5 years का बच्चा है, तो the parents can give consent. In that case it is known as assent. Okay? But suppose कोई adult है but alcoholic है, he is under alcohol,
Can he give consent? He or she? No. Yes. So what is important is that person should be in clear state of mind. वो किसी ड्रग के इफेक्ट में ना हो, उसका कोई मेंटल स्टेट एबनॉर्मल ना हो, ठीक है? In that case, the first degree blood relative, either parents or spouse, अगर वो कोई नहीं है तो elder brother or sister can give consent. So, if you take a consent of a person who is not in clear state of mind, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, चाहे वो किसी नशे के इफेक्ट में है, चाहे किसी मेडिसिन के इफेक्ट में है, या वो मेंटली अनसाउंड है, that is a invalid consent or that is not accepted in any court of law. Then question comes, what are the types of consent? So consents may be mostly two types, implied or express. So what, can anybody give me example of implied consent? Implied consent क्या, कोई example देंगे? Anybody? Anything else? Something that's not clearly written in words, but maybe a consequence of an action that may happen. Anybody else? It is implied, means it is understood. Suppose you are sitting in your clinic and a patient walks in your clinic, that it is implied कि वो आपको दिखाने आया है, ठीक है ना? So that is the best example of a implied consent, ठीक है? Written consent कब लेनी है? जब आपको उस पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर करना है. अगर आप फिजिशियन हो या जनरल प्रैक्टिशनर हो या सर्जन हो, वॉट एवर, यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक और ओपीडी, और पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मेरे को दिखाना है आपको, मेरा सर दुखता है या मेरा पेट दुखता है, वॉट एवर, सो देन दैट इज इम्प्लाइड. वहाँ कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती, ओपीडी में कोई कंसेंट नहीं लेना होता, ठीक है? दैट इज इम्प्लाइड कि पेशेंट आपको दिखाने आया है और आप उसको एग्जामिन करोगे. द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर इज, once you are examining a female patient, you should always have a female attendant with you for all the male doctors, because there may be a problem. Otherwise OPD में कोई consent नहीं लेता ना clinic में. But what is express consent? When you want permission for doing any procedure, जैसे examine करना है उसको, तो आप उसको पूछोगे कि भाई मैं आपको examine करना है, आप चलिए उधर, तो वो वहाँ जाके लेट गए, इसका मतलब implied है. बट इफ यू हैव टू डू एनी प्रोसीजर, ठीक है, जैसे कि आपको उसकी एंजियोग्राफी करनी है, ठीक है, सीटी एमआरआई करना है, और एनी अदर इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन करना है, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है, वेदर इट इज माइनर और मेजर. सपोज एक छोटा सा एब्सेस है, उसका आईएनडी भी करना है, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक अ कंसेंट. मेजर सर्जरी, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक अ कंसेंट. So these are the two forms of consent, implied and express. So as I have already told you, क्या क्या details लेना है उस consent में. It is a detailed consent. Sometimes पूरे page का consent होता है, depending on the procedure. Suppose अगर कोई head neck cancer का patient है, उसकी surgery होनी है, so we have got a full page consent, explaining all the details of the procedure, what all you have to remove. बिकॉज पेशेंट की बॉडी है, उसका कोई भी पार्ट रिमूव करना है, आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस विच में अगर आफ्टर सर्जरी, आपको ये भी समझाना है कि सर्जरी के बाद आईसीयू में एडमिट रहेगा पेशेंट, ठीक है, उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग दैट सर्जरी में फेल ऑल्सो, ठीक है ना? आपने ग्राफ्ट लगाया, बोन ग्राफ्ट लगाया, ये सब निकाल दिया मैंडिबल, इट में फेल, वो भी आपको समझाना है. So all the details of the disease, all the treatment options, आपको ये भी बताना है. Suppose पेन एब्डोमेन का पेशेंट है, you have diagnosed him as a case of acute appendicitis. Now you have to explain कि दो ऑप्शन है आपके पास, conservative और surgical. Conservative, in your case you have to go for surgery because of these reasons. Now surgery may also be of two types, या तो डायरेक्ट इंसिजन से करा लो या लैप्रोस्कोपिक. आजकल बोलते हैं ना दूरबीन की सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज. सो यू हैव टू गिव बोथ द ऑप्शंस, देन पेशेंट हैज टू चूज. दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको समझाने पड़ेंगे. देन द
there is a choice of the patient, whichever he or she wants to go for, that also should be explained. Plus, what type of anesthesia he or she will receive, ये भी समझाना है. जैसे जनरल एनेस्थीसिया लगेगा या स्पाइनल लगेगा या लोकल में होगा, वो भी समझाना है, और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी शॉर्ट में आपको बताने हैं. एंड पोस्ट एनेस्थीसिया व्हाट कैन हैपन, स्पेशली इन मेजर सर्जरीज लाइक हेड नेक कैंसर सर्जरीज, जहाँ की ट्रेकियोस्टमी हो रही है, ट्रेकिया में भी छेद कर रहे हो, पोस्ट ऑफ पेशेंट को 2-3 दिन, कभी कभी 5 to 7 days ICU में भी रहना पड़ता है. तो पेशेंट शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड for all the consequences, worst to worst consequences and all the financial burden. ठीक है? That is why this consent is important. And this concept of consent is not new कि अभी CPA हो गया, अभी medical legally हम बहुत फंस रहे हैं, तो we should take consent. So in our medical ethics, since 1947, it has been clearly stated that you cannot deal a human body without permission from the patient. ठीक है? और किस तरह की कंसेंट होती है? सपोज कोई पेशेंट के फोटोग्राफ्स आपको पब्लिश करने हैं, अपना कोई केस रिपोर्ट या केस सीरीज या पेपर पब्लिश कर रहे हो या कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंट कर रहे हो, वो फोटोग्राफ इमेजेस प्रेजेंट करने के लिए भी यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पेशेंट. You have to take permission or consent from the patient for being a part of any study which you are doing. So, जब भी आप PG करोगे तो you will do your dissertations, your thesis, as well as some research papers you will present and publish. Then also you have to take permission from the patient to be a part of that study. Then also you have to explain to the patient क्या study आप करने वाले हो, क्या intervention कोई drug दे रहे हो या कोई procedure कर रहे हो, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, द पेशेंट शुड नो दैट ही और शी हैज गॉट द राइट टू नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टडी. पेशेंट को पता होना चाहिए उसके राइट. ही शुड नो दैट ही कैन रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टडी. पेशेंट कैन रिफ्यूज टू अंडरगो दैट सर्जरी. इट इज ऑल द विल ऑफ द पेशेंट. यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी. आपको पता है कि उसका अगर अपेंडिक्स ऑपरेट नहीं हुआ वो मर जाएगा, परफोरेट हो गया, सेप्सिस हो गया, वो मर जाएगा. बट द बेस्ट यू कैन डू इज टू एक्सप्लेन द पेशेंट. यू कैन नॉट फोर्स द पेशेंट कि नहीं तू करवा, मैं तो करूंगा तेरी सर्जरी. नो. ठीक है ना भाई, मुझे पता है कि अगर मैंने उसकी सर्जरी नहीं की, विद इन 4 to 5 hours he will be landing up in complications that may be life threatening. Patient may lose life. बट वॉट आई कैन डू, मैं क्या हद से क्या कर सकती हूँ, मैं उसको समझा सकती हूँ. मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती कि नहीं चल ऑपरेशन थिएटर में लेट, मुझे तो तेरा अपेंडिक्स निकालना ही पड़ेगा. दैट विल बी रॉन्ग, ऑल्दो दैट इज इन फेवर ऑफ पेशेंट, बट लीगली दैट एक्ट इज रॉन्ग. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर यू शुड नो वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू. आप कहोगे मैं तो सही था, मेरी बुक्स में लिखा है इतने काउंट्स है, इतना बड़ा अपेंडिक्स है, इसको ऑपरेट नहीं किया तो ये मर जाएगा, तो मैंने सही किया. नो, यू कैन नॉट फोर्स योर नॉलेज ऑन दैट पेशेंट. वो उसकी मर्जी है कि वो जिंदा रहना चाहता है या मरना चाहता है. ठीक है ना. सो इन अदर वर्ड, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, जब आपको MBBS की डिग्री मिल जाएगी, देन यू विल बी एलिजिबल टू डू प्रैक्टिस. लेटर ऑन यू विल डू पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, वॉट एवर यू डू. So whenever you are treating a patient, you should not force your knowledge on the patient. ठीक है ना, तभी आप बचोगे, वरना कभी उल्टा सीधा कोई फंसा देगा, so that will be a problem for you. And it is very important कि written consent लो. मेडिकल प्रैक्टिस में वर्बल कंसेंट का कोई रोल नहीं है. आप बोलोगे मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, मैंने तो इससे बात की थी, इसको एक्सप्लेन किया था, इसने तो कह दिया था हाँ डॉक्टर साहब कर दो ऑपरेशन. नो, ऑलवेज रिमेंबर दैट डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दीज डेज वेयर पहले तो क्या होता था, डॉक्टर्स वर कंसिडर्ड एज गॉड. डॉक्टर भगवान है, चाहे वो RMP है, डिग्री भी नहीं है उसके पास, बट इतना फेथ होता था लोगों को कि डॉक्टर्स आर गॉड. अभी क्या है, डॉक्टर्स आर
आजकल मैक्सिमम लोग कहते हैं कुछ नहीं, पैसे कमाते हो आप लोग तो क्या करते हो। कंसेप्ट चेंज हो रहा है। ऑल्दो जब कोविड आता है तब ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। कोविड जाते हैं फिर मारपीट करते हैं। ये सिनेरियो हो रहा है ना हमारी सोसाइटी में। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्रॉब्लम में डाल के किसी की जान नहीं बचानी, ठीक है ना। ऑल्दो वी हैव टू सेव लाइफ बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लाइफ एंड पीस, ठीक है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट एंड स्वीट प्रेजेंटेशन, है ना। बोर नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। बोर तो नहीं हुए?